was closed in accordance with law by the order of the magistrate, but re-investigation started without any authority, without any written order from any quarter, and without getting any order from the magistrate. This was my first submission. And adding here, investigation started on 24th of July 1977, whereas record of the case was taken on 8th of August 1977. So this was my first submission. Next submission was, it was incomplete, challan was submitted before the court on 12th of September 1977. It went to the session judge on the same day, and on the very next day, an application filed by the state for transfer of this case was allowed without any reason and without any notice. And accused were summoned to appear before the High Court as a trial court, and thereafter an application was submitted by Zulfiqar Bhutto, where bias was alleged, and this was one of the ground of bias that no notice was issued to me. And while deciding that application, they concluded that under Section 526, no notice is required to the accused. And notice is only to the prosecution, which is not a bias, which is not a mistake, but I don't know what is the appropriate word to call this move of the prosecution. So sheer blatant violation of the law, blatant. This, if you talk to a student of law, he does understand what is audi altrum partem. Such an important point. When they were made respondent by the state, no notice was issued. And then they concluded this. And thereafter, my submission was 374 wala. With transfer, sir. My submission was that under Section 526, subsection 2, when High Court withdraws a case either on its own or because of transfer, High Court is required to follow the same procedure which is prescribed by the law for that particular court. And in this situation, this is part of the procedure of the Court of Session, that they are required to submit a reference to the High Court, and that sentence cannot be executed unless it is confirmed by two judges of the High Court. It has nothing to do with the appeal. Right. So these was precisely my submissions. Thank you. Now, sir, I will move. And it is quite clear कि इस केस में डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के बारे में कोई ऑर्डर नहीं, वो हो सकता ही नहीं है ना जी, रेफरेंस नहीं है तो ऑर्डर कैसे होगा? देखिए, ये तो अगर ट्रायल एक जज ने किया है तो और उसने डेथ सेंटेंस कर दिया, तो द रेफरेंस कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड बी प्लेस्ड बिफोर टू जजेस. तो रिडंडेंसी नहीं, थोड़ी मुश्किल, उन्होंने किया नहीं. वी आर विथ यू टू दैट एक्सटेंट. तो खत्म होगी ना जी, वो तो करना जरूरी था. और वो भी आप फरमा रहे हैं कि वो ये हो ही नहीं सकता है इस केस में. मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब जैसे या तो there is an other interpretation which has been put forward by my Lord Chief Justice कि High Court at that particular time is acting as a court of session. So they are required to send a reference to another bench of the High Court. यही हम भी यही कह रहे हैं. ये होना चाहिए, मतलब नहीं हुआ ना जी. दूसरा मैं ये कहता हूँ कि दूसरी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर हम 526 को 374 के साथ मिलाकर पढ़े तो you can safely draw an inference that a case where sentence of death is provided cannot be transferred. Equal 374 in any case is far more important. मंजूर साहब, मेरे साथ थोड़ा सा ये कानून में किया जाता है एक्सेप्ट मर्डर केसेस. जैसे आपने कहा दो एग्जाम्पल नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. हो सकता है सर, वो बस अब देखें ना जी, ये तो फिर आपने इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल पे चलना है ना कि जब दो प्रोविजन है
तो उसमें क्या करेंगे आप? ज्यादा ये तो मेरे substantive- ख्याल में सिंपल सी चीज है। मंजूर साहब इसमें जरा सेक्शन 374 की जो लैंग्वेज है ना, हाँ हाँ, ये लिखा है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस सेंटेंस ऑफ दैट द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट। अब इसमें अगर हाई कोर्ट खुद डेथ सेंटेंस वो यही मैं कह रहा हूँ ना जी, वो मैं बता रहा हूँ उस पे, सर, तो वो सर। साइलेंट है इस पॉइंट के ऊपर। और आपने कहा कि सब सेक्शन 3 के अंदर 526 में लिखा हुआ है कि वही प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो इसके 2 में, अंदर 2 में। जी जी 2 में लिखा है। तो अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो सेंटेंस देनी है ये तो हाई कोर्ट में जानी है। अब हाई कोर्ट की कंफर्मेशन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। नहीं मैं तो ये नहीं, ये सर, मैं 5 to 6 कह रहा है, अपील का तो कोई एक- 5 to 6 जो कह रहा है सर, वो ये कह रहा है कि यूं समझा जाएगा कि विड्रॉ नहीं हुआ, सेशंस कोर्ट ही यस सुन रहा है। यस ये है। उसमें ये जो पॉइंट है ना 374 का कि फिर हाई कोर्ट अगर ये किसी के मर्डर के डेथ सेंटेंस देती है किसी को, तो फिर उसका कंफर्मेशन का जो प्रोविजन है वो इसके अंदर मैं- इम्प्लाइड तो लिखा हुआ है कि सर इसमें नहीं। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस वजह से ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इसको एक अलग पहलू है यही ना है, कि हो ही नहीं सकता। वही है। वो if और it is सेकंड wrong ये है कि अगर आपने कर लिया है तो फिर आप रेफरेंस भेजें हाई कोर्ट को। यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि केस 5 मेंबर बेंच हैज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी, तो आपके ख्याल में अगर रेफरेंस जाता भी तो इंट्रा कोर्ट अपील तो है ही नहीं, नहीं हाई है। कोर्ट में ही जाता, नहीं, हाई वो कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था ना। बिल्कुल यही है। रेफरेंस तो बिल्कुल कहीं भी भेजें। अब वो तो इसमें अगर मेरे ख्याल में शायद कुछ हमें जवाब का हिंट मिलेगा अगर हम सेक्शन 375 भी देख लें, जी 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 जी। क्योंकि हाई कोर्ट इज नॉट जस्ट अ रबर स्टैम्प बट इट कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। बड़ा मैंने तो पहले बताया था जनाब को कि प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑनवर्ड। Confirmation is just yes, confirm, no confirm. They No, can no. do other things also. एविडेंस भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, भेज सकते हैं। बड़ा ये वो तो मैं पढ़ना नहीं चाहता तो था। अच्छा इससे एक और बात उठती है। जी सर। एक तो है सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। बट आई मे बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे पता है whether it's a trial by third class, second class, first class magistrate, additional session judge or whatever, they always by a single judge. यस ये वही है पॉइंट। ये 5 member There is bench no concept. There के is no ये concept. क्योंकि वो कंट्रोल करना, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, कोई कुछ फिर सवाल आप पूछ मेरा रहा है। वो आर्गुमेंट भी प्लीज कंसिडर Because कीजिए। there are other provisions in Yes. the CPC where conduct has to be recorded or something. Unless there's some specific law which says this number of judges will be here. This was wrong. जैसे कि for instance treason case में 3 judges will hear it. तो वो तो अलग बात है, but normally there's a CRPC envisage a trial by more than one. इसमें है कि कंफर्मेशन 2 जज करेंगे। हाँ वो ठीक है। ये जहाँ अच्छा सर, वो अब दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज कर रहा था कि आप इंडियन जुरिस्डिक्शन को देखिए, कितना बड़ा इंडिया है। तो वहां एक केस भी नहीं रिपोर्ट हुआ कि जो हाई कोर्ट में आया हो मर्डर का। क्यों? वो इसी वजह से नहीं आया कि ये चीज हो नहीं सकती। 2 प्रोविजंस है ना, वो स्पेशल लॉ पे आ जाएगा। वो जो प्रोविजन 374 की है। कह दूं? हाँ हम कह रहे थे डिफरेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगते उधर। ये मैं 2 केसेस जो दिए आपने वो शायद मार्शल लॉ का ताल्लुक नहीं था उनसे बाहर। नहीं, वो बहरहाल वो तो हुए कुछ नहीं जी उसमें तो, क्योंकि दोनों ने कहा वैसे था गौर अयूब साहब तो नहीं, उसमें तो बहस ही नहीं हुई ना इस पॉइंट पे। दोनों ने चला कहा कि ठीक है कर दो, उन्होंने कहा कर दो। फिर वापस चला गया वो केस। एक वापस चला गया, दूसरे में बरी हो गया। तो इश्यू नहीं आया ना जी। ये इश्यू तो कोर्ट को देखे, मुल्जम का काम नहीं है कि वो कोर्ट को हर चीज बताए। दिस इज ड्यूटी ऑन द कोर्ट। अब मर्डर रेफरेंस देखना ये कोर्ट का काम है, मुल्जम को नहीं पता हर बंदा। और फिर उस सिचुएशन को देखिए कि एक दिन एप्लीकेशन आ रही है और वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस अमीनुद्दीन कि हो सकता है ये 13 को ही आई हो। 13 को आई है ना, तो फिर वो 526 में 24 आवर्स। सर वो मुल्जम का है, अगर वो मुल्जम देगा। अगर नहीं, वो भी दे तो भी 24 घंटे से पहले ट्रांसफर नहीं होती। हो सकता। तो ये आप देखें ना कि, और उसकी मैंने वजह भी आपको बता दी एंड राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस ये या कि वो अगर करते तो फिर उन 2 जजों को शामिल करना पड़ता। यही बात। वो नहीं कर सकते थे कि एक ने बेल दे दी। तो ये तो इतना ज्यादा इसके लिए तो मुझे रोक रहा है मेरा ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसमें ये सिचुएशन लग रही है कि जब हाईकोर्ट ने ट्रायल अपने पास रख लिए तो उन्होंने स्टेटस सेशन जज का ले लिया। बिल्कुल वही। और उसके बाद फिर 377 में लिखा है कि कंफर्मेशन 2 और मोर जजेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यही है।
तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहां भिजवाना चाहिए था, जो कि नहीं भिजवाया। अगर इसका मतलब मजीद मैं जस्ट बात बढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 375, 376, 377, 378, 379, 381 have been made redundant. सारा कुछ रिडंडेंट कर दिया। तो ये सारा उन्होंने जो तरीकेकार दिया है कि वो कम भी कर सकते हैं सजा। और फिर आप हेस्ट देखें ना, हेस्ट देखें कि जब आपके केस की फाउंडेशन ही गलत है, री इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजन कहीं हो, कुछ दिखा दे कि कंप्लेंट का क्या हुआ? सर वो कुछ भी नहीं हुआ ना जी, वो तो पड़ी रह गई, पड़ी रह गई, पता ही नहीं है, कंप्लेंट का रिकॉर्ड आपके पास नहीं आया, वो पड़ी रह गई, उन्होंने उसको टच ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पैरे में लिख दिया कि जी नहीं, वो नूर अलाई केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे, इसके फैक्ट्स डिफरेंट है, ये ट्रायल हो गया। ये नहीं कि उसका हुआ क्या, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है कि उस कंप्लेंट का क्या हुआ। ये बेसिक प्रिंसिपल था कि सुनता तो एक बेंच ना, जब एक कंप्लेंट चली गई 2 मेंबर बेंच के पास तो सुनना तो उनको चाहिए था, या अगर आपने 5 बना लिए थे तो 3 वो भी शामिल कर लेते, वो नहीं किए गए। तो ये तो बायस, और जो आप फैक्चुअल लीगल बायस की बात करती हैं, मैलिस की बात करती हैं, ये तो मैलिस से ऊपर चली गई बात, मैलिस तो रहा ही नहीं। ये तो टोटल एक बिल्कुल आपने एक तय करके काम कर लिया कि यार लाओ और ठीक है। अब आगे मैं जो आपको बताऊं, फिक्स्ड मैच नहीं फिक्स्ड भी नहीं सर, वो पेनफुल वर्ड्स हैं। What word would you use? मैं मुझसे ना करवाएं, मेरे लिए फिर पंजाबी में मैं कुछ कहूंगा तो वो फिर नहीं, ये बताएं कि कंप्लेंट तो फिर है ही नहीं ना रिकॉर्ड में, नहीं आपके पास नहीं है। We don't know what's the difference between the complaint and the FIR. नो, सिर्फ एक पैरा है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो डिफरेंट चीज थी, उसमें मुलजिम और भी शामिल कर लिए गए थे, ये करके, इसलिए ये हाई कोर्ट का सही फैसला है कि ये कंफर्मेशन वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया नहीं, ये तो डिस्कस कहीं हुआ ही नहीं है कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक कंफर्म पूछनी है कि सेंटेंस चलिए हो गई, सिलसिला हो गया, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो सकती, वो विदाउट कंफर्मेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हम ये कहें कि एग्जीक्यूशन जो है वो एब्सोल्युटली इलीगल, बिल्कुल इलीगल, एवरी स्टेप वाज इलीगल। अभी तो आप आगे आएंगे, स्टेप छोड़िए, मैं सर यही है, कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन वो तो बिल्कुल इलीगल है। सर एक चीज इलीगल नहीं है, ये यहाँ पे एक इलीगैलिटी नहीं है, मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट आउट करूंगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते। फर्ज करिए कि जैसा कुछ भाइयों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जा सकता था, हालांकि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 जजेस का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस कंफर्म कर रहे हैं ना, बेसिकली 3 ने तो बरी किया है, प्रैक्टिकली तो 4 कैसे कंफर्म कर सकते थे 5 वाले को? नहीं कर सकते, एक को तो 2 कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की फिर बेंच जो न्यूमेरिकल है वो टोटल स्ट्रेंथ पे होगा, तस्वर वो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 4, फिर तो सर इस पे मैं तो यहीं तक कन्फाइन करूंगा। मेरी कंटेंशन तो यही है कि ये जो 2 प्रोविजन अगर आप पढ़ें तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अपील, उसमें मुल्ज़म का जिक्र ही कोई नहीं है। इस तरीके से चलाया जाता, जब एक स्पेशल लॉ था एंटी टेररिज्म का जिसमें ट्रायल हाई कोर्ट चलाती थी, उसमें तो कंफर्मेशन उसी हाई कोर्ट से होती थी। नहीं, वो कहाँ ट्राई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कभी भी नहीं स्पेशल लॉ के तहत जो 90s में थे। नहीं सर, नहीं कोई भी नहीं था, वो एक और वो सर वो थी स्पेशल कोर्ट, वो एक बनी थी स्पीडी ट्रायल कोर्ट है, 80s की बात है, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। नहीं सर नहीं, वो और है, ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट आया था 75 का। नो सर वो सप्रेशन है, ये 87 में आया था, कुछ साल 2 साल के लिए रहा था, फिर खत्म हो गया था। आगे बढ़े थोड़ा, आपने लाहौर भी जाना है? नहीं मैं कल चला जाऊँ। नहीं आज ही जाएं, आज ही जाऊँ जैसे आप हुक्म करें। अच्छा सर, अब now I'm drawing your kind attention towards the procedure of trial which the court was required to follow. It is start from 265. Have it? 265A. This is chapter 22A, which was inserted in 1976. Before that, there were commitment proceedings, but this chapter was instituted. Now, sir, it starts with 265A is not so relevant.
265B ये जो है B और C से शुरू होता है कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन police in all cases instituted upon police report, copies of the following documents shall be supplied. So this is the first step when accused come to the court. So on the first date of hearing, copies are supplied. for So that, framing of charge. yes, so that they know, okay, what is the case against us, what is the evidence on the basis of which we are being tried, or prosecution wants us यही प्रोसीजर हाई कोर्ट ने भी फॉलो करना था. 265B में. जी सर, अब आगे आप देखिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है 265D. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. If after perusing the police report, or as the case may be, the complaint and all other documents and statement filed by the prosecution, the court is of the opinion, this is very important, the court is of the opinion that there is a ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge. So the court is required, this is shall, court is required to form. इधर नहीं हुआ क्या? मैं सब थोड़ा मैं अभी आ रहा हूँ ना जी उस पे. मैं अभी आप उल्टा कर दें, पहले बताएं नहीं हुआ फिर नहीं हुआ, चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ. नहीं चार्ज फ्रेम हुआ. मैं अब थोड़ा सा ओपिनियन फॉर्म ने की ये क्या? सर मैं ये कर रहा हूँ कि पहले स्टेप पे आप कॉपियां देंगे मुझसे. जी, वो तो पता है सर. सर नहीं, अगली स्टेज का भी है ना. और विद इन 7 days 7 दिन के बाद आप चार्ज फ्रेम करेंगे. उससे पहले आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे. तमाम मटेरियल जो आपके पास हो, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे ये FIR है, ये स्टेटमेंट्स है, ये रिपोर्ट है डॉक्टर की, ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, और हम समझ बकायदा एक ऑर्डर होता है. इन एवरी ट्रायल देयर इज एन ऑर्डर कि आई हैव perused the record and I am of the opinion there are ground for proceeding. अब इस केस में क्या हुआ? Your Lordship kindly look at page 3 of volume 7. This is the first date of hearing. वॉल्यूम 7 सर, वो जो पहला बेल ऑर्डर है ना ट्रांसफर का, उसके अगला पेज जो आप कह रहे थे कि शायद इस पिटीशन का ऑर्डर है. डायरेक्ट उन्होंने एविडेंस को समन कर लिया. यस, अभी मैं पढ़ता हूँ. मैं पढ़ लिया. आगे भी नहीं, आगे बड़ी बात मजेदार बात है. पेज सर 3, पेज 3 वॉल्यूम 7. अब ये पहला ऑर्डर है 24/9/77. इससे पीछे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि टू बी हर्ड ऑन 24/9/1977. पिछला देख लीजिए पेज जरा. जब ये ट्रांसफर किया तो उन्होंने कहा कि 24 को सुना जाएगा, तो ये फर्स्ट डेट हो गई. अब इसका देखिए, इसमें पैरा 2 में जो है ना सर, पैरा 2 से पहले सर, दिस केस इज adjourned to the 2nd of October 1977 फॉर ट्रायल. यस. अगला कहते हैं एविडेंस भी समन, और उसके बाद कॉपी सप्लाई कर रहे हैं. इसलिए मैंने आपसे उस वक्त पूछा था ना कि चार्ज का फ्रेम. सर मैं इसीलिए मैं सीक्वेंस में मैं आ रहा था ताकि सारी बातें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड रिकॉर्ड है, मेरी डिफिकल्टी ये है, और मैं चाहता हूं कि आप सब जो है ना मेरे साथ चलें, आपको पता चल जाए कि है क्या ये. वो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए आ रही है, नहीं तो मेरे लिए कोई ये ऐसी बात नहीं है. अब आप देखिए इसको. अब ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, mandatory provision of law hai that you have to form an opinion. This is the first date of hearing, and first sentence. Adjourn for trial and evidence be summoned. और ये उल्टी बात कर दी, and then they supplied the copy. 265D को totally ignore कर दिया गया. और ये mandatory है, you have to form an opinion. Am I clear, sir? Clear? Right. अच्छा, बड़े ये लोग पेश हुए थे, एम अनवर साहब पेश हुए हैं. सर एम अनवर जो थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से. वही मैं कह रहा हूँ, वो कुछ इसमें ये सारे लोग किसकी तरफ से हैं? सर ये आप जो ऊपर हैं, एम अनवर, एजाज हुसैन बिटालवी, एम ए रहमान स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स फॉर द स्टेट, जुल्फकार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद. तरफ से कोई वकील कोई नहीं था ही, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं. अभी आए ही नहीं ना, कोई वकील कहाँ से आएंगे? पहले दिन तो वो पेश हो रहे हैं. अंदर को लिखा हुआ है कि अंदर हुआ है, कुछ साथ खड़े हैं बस. आप गुल पेश हुए. सर बड़ा कुछ हुआ. अभी तो अगर मैं पूरी ये आपको पूरी एविडेंस पढ़ूंगा तो 1 महीना लगेगा, मगर ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो शॉकिंग हैं.
ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ हैं और वायलेशन भी नहीं है, वायलेशन से अगली चीज है ये आपको जो मुझे ये लग रहा है जैसे केस का ऑर्डर शीट पढ़ी जा रही है, ये सिविल केस की मैं ऑर्डर शीट पढ़ रहा हूँ, नॉट अ क्रिमिनल केस की। मतलब कुछ लग ऐसे रहा है जैसे कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, जैसे जरा आप देखिए ना वो चार्ज फ्रेम होना। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो अब मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि क्रिमिनल केस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रायल वर्क बड़ा जरूरी है। इसमें जो जजेस थे मालिक साहब आप जानते होंगे, जानता हूँ। ट्रायल कोर्ट के थे। कोई भी एक था गुलबाज साहब, बट ही वाज द जूनियर मोस्ट। सेशन से आए। जी, बट ही वाज द जूनियर मोस्ट सर। मलिक साहब कैपिटल पनिशमेंट में तो वकील का होना भी जरूरी है, तो सर वो तो बाद में होना जरूरी है कि जब आप एक्चुअल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब मगर ये बड़ी मटेरियल डेट है कि आप एक पहली डेट पे बंदे आ रहे हैं, आप पहली ओपिनियन पहले दे रहे हैं, कॉपीज बाद में सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या फायदा? आपने तो राय पहले बना ली कि केस इज फिक्स। मलिक साहब ये पेज 10 के ऊपर ये जरा से इनसे पूछ लेते ना चार्ज के बारे में। पेज 11 के ऊपर ये 3/10/1977 का ऑर्डर है। पैराग्राफ 5 केस इज एडजर्न्ड टू 11th October 1977 फॉर ट्रायल, witness shall be produced on the date fixed, 7 days adjournment has been given as provided in section 2। जी उसी दिन चार्ज अब आप 11/10 को देखे तो चार्ज 11/10 को फ्रेम हो। जी जी उसी दिन को हुआ है। Charges read and explained to the accused, they pleaded not guilty। Very right, sir. But my respectful submission is that there is a procedure. Procedure you have to follow, which is for the court of session. That procedure says that first you will supply the copy, then you will form the opinion. And how can you form the opinion without perusing the record? You may need assistance of the counsel at that time. Even before framing of charge, before framing of charge, 265H की रोशनी में, it is a conviction by the court of sessions or the high court। ये कन्विक्शन तो सेशन कोर्ट की समझी जाएगी। यही बात है। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ। Confirmation unless it is confirmed by the high आगे court नहीं होगी, नहीं हो सकती है। यही तो मैं सबमिट कर रहा हूँ सर। This is the first time this point has been raised. First time 374, and credit go to Justice Shah for writing such a beautiful judgment and highlighting the importance। मलिक साहब देखिए ये जो चार्ज फ्रेम करना है, जैसे आपने कहा कि ओपिनियन फॉर्म करने के, सपोज किसी और केस में अगर मटेरियल की बुनियाद पे एविडेंस इतना ना हो कि चार्ज फ्रेम किया जा सके, फिट हो जाएगा। 265 की पावर इस्तेमाल कर। ये वेरी बड़ा जी पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है जस्टिस मंदोखेल साहब ने। ये आपके अपनी हद मंदोखेल साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करने की पोजीशन अपना आती है स्टेज पे और वो कहते हैं कि द मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट, व्हाट विल हैपन? So that in that situation, court has the power to quit the accused under section 265K। कि जी हमारे पास ये मटेरियल ही नहीं है, हम आपको क्या चार्ज करें? किस पेज पे चार्ज? ये पेज 12 पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया था मिस्टर भुट्टो ने। जी जी पेज 12 पे सिर्फ लिखा हुआ है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द काउंसिल फॉर सिर्फ मेंशन है चार्ज किस पेज पे मिलेगा? सब मिल गया। मैं आई वाज एड्रेसिंग पेज 12 क्वेरी, आप बता दो। Volume 2, page 1। जी पेज 12 के ऊपर एक ऑब्जेक्शन ओवररूल हुआ है व्हिच वाज रेज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिस्टर। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन था, वो मेंशन नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Where is that charge? पेज कौन सा? पेज पता नहीं, पेज 1 पेज 1 है, वॉल्यूम 2 पेज 1। अब चार्ज भी उन्होंने हर एक का अलग-अलग कर दिया, एविडेंस चल गई है, अलग-अलग कर दिया चार्ज। पेज कौन से है? ये डज नॉट जॉइंटर ऑफ ट्रायल है ना, उस प्रिंसिपल को भी वायलेट किया कि अगर सारे मुल्ज़म है तो चार्ज आप इकट्ठा करेंगे, उन्होंने चार्ज भी अलग-अलग कर। हाँ ठीक, वो बताओ 49 पेज है इसका। हाँ, इससे अगला पॉइंट नोट करो जिसके बाद आना है। क्या कर रहे हैं?
सबमिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है द प्रेजुडिस, व्हाट प्रेजुडिस वाज कॉज्ड टू द अक्यूज्ड। तो अगर चार्ज, तो देखें वो आपकी बात ठीक थी कि नोटिस होना चाहिए था, वहां ठीक था। यहाँ पे ये कहना कि चार्ज उनने डिफरेंट कर लिया, उससे इसे चलो छोड़ दें, मैं इसको इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा। मैं वही कहता हूँ आप उस चीज पे रखें जहाँ पे अक्यूज्ड को प्रेजुडिस। सर मैंने इसको जस्ट पॉइंट आउट किया, मैंने स्ट्रेस नहीं किया। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको ये नहीं कहा कि आप इसकी बुनियाद, मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो शॉकिंग है, वो बता रहा हूँ। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं किया, वो बता नहीं, वो तो उल्ट कर दिया ना, आपने अपना प्रेजुडिस शो कर दिया कि आपने पहले रख लिया कि जी केस को एडजर्न करो फॉर एविडेंस फॉर ट्रायल। इसका मतलब है आपके दिमाग में पहले ये बैठा हुआ है, मुल्जिम आया है, ना उसका वकील है, ना आपको कागज देखे हैं, ना आपने कहीं लिखा है। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ना जी कि ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। कोई जो एपीलेट कोर्ट के जजेस होते हैं दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायल। जिंदगी में काफी चीजें सिर्फ इंसान एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर सकता है, किताबें पढ़ के नहीं कर सकता। वो जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो सारे वेल वर्स्ड होते हैं ना कि ये स्टेज है, ये स्टेज है। अब जो फाइल जाती है हाई कोर्ट की कंफर्मेशन में, वो जो रीडर या अहमद भेजता है उसको नहीं पता ये क्यों, विजडम क्या है इसके पीछे, वो कहता है लिखा भेजो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये करना ही नहीं चाहिए केस, हाई कोर्ट का काम ये नहीं है। ये तो एक प्रोविजन रख दी गई है। इंडिया में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं तो केस ट्रांसफर हुआ? हमसे 5 गुना बड़ा है, कोई केस क्यों नहीं ट्रांसफर? अब आगे देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो उसका जवाब ब्रेक से पहले मिल चुका है। क्या वो माशाल्लाह नहीं थे। अच्छा, अब मैं जो ऑर्डर पढ़ने लगा हूँ, ये बड़ा बहुत ही ये भी एक पेनफुल ऑर्डर है कि क्या इस ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस साहब को ये केस सुनना चाहिए था? ये अब ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है कि जहां चीफ जस्टिस साहब मुल्जिम से नाराज हो गए हैं और ये लिख रहे हैं कि मैं नाराज हूं, ये लिख रहे हैं मैं नाराज हूं। आपके साथ वकील की तलख कलामी हो जाती है और वो बात खत्म हो जाती है। मगर अगर आप पार्टी से उलझ जाएं या पार्टी के खिलाफ आपको प्रोसीडिंग की दरखास्त दे दें किसी को, तो क्या फिर आप जज रह सकते हैं? इसको बायस कहेंगे, प्रेजुडिस कहेंगे, क्या कहेंगे? अब मैं आपको पेज 49 इसी वॉल्यूम में, यही है ना? एक सेकंड, आप आगे जाने से पहले जरा आपको एक सवाल पूछना था। सर हुक्म करें। 302 is dependent on the conspiracy, correct? Yes. जी, इस केस में yes. If conspiracy goes, 302 collapses. To the extent of conspirators. To the extent of Mr. Bhutto. Yes. Now, please, can you come to the first charge? Yes. And just read it. Where are the particulars in this charge? Sir, देखिए ना, accused is entitled. This is a case of conspiracy. Now, please just read it. ये है जी that you sometimes in the middle of 1974 where conspired, जरूरी था, मगर सर मैं यही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो ingredients देना in someone's house, in the prime minister house, in where about? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जनाब का हुक्म था। कंस्पिरेसी के कंपोनेंट्स तो डालेंगे। मैं वो आगे आऊंगा। जनाब का हुक्म था कि बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। I was just wondering. तो नहीं, ये है इस तरह तो सर हर ऑर्डर में ये मैं आपको बात दिखाऊंगा। फिर तो ये अनएंडिंग है। ये तो बातें मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूं कि मैं उन चीजों पे जा रहा हूं जिनका जवाब यहां बैठे किसी बंदे के पास नहीं। मैं तो अगर ये तो बातें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब वो पढ़ें रेलेवेंट प्रोविजन, हाउ ए चार्ज टू बी फ्रेम, टाइम, प्लेस, सब कुछ आपने मेंशन करना है उसमें। 222 से आगे शुरू हो जाए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। समटाइम्स कौन सा टाइम था, कहाँ पे थे, क्या था, मगर मैं कहता हूँ उसको इग्नोर करें। जैसे वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय मिस्टर जसैया कि जी वो ठीक है, चार्ज अगर उन्होंने उस तरह नहीं भी किया तो प्रेजुडिस को, वेरी राइट, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं, बट आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए उसकी अहमियत देख रहा हूँ बिकॉज इफ देयर आर सम केसेस वेयर यू कैन कन्विक्ट सेपरेटली, ठीक है, but here murder is dependent on conspiracy. Quite right. Which is not generally the case. No. You know, murder हो गया, ठीक है, वो अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर उसको खत्म करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली collapse हो जाएगा against this particular accused. जी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे। मैं तो एग्री कर रहा हूँ सर इससे।
मैं तो इस पे कह रहा हूँ कि ये बात Yeah, I'm just making a questioning. 100% apt observation, appreciated. अब सर मैं पेज जी सर 49 पे आप जी 49 सर अब मैं पढ़ने लगा हूँ। ये 2 लाइनें ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सबके लिए। ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये सब पेज 49 वॉल्यूम 7, पेज 49 वॉल्यूम 7। मिल गया सर जी। During the cross-examination of the witness, while describing the purpose for which the first handgun had already been secured by Ghulam Mustafa, the witness stated that it has been obtained for the use against Chief Justice and has already been used against film actor Muhammad Ali. The witness later corrected by saying that by Chief Justice he meant retired Justice Sayyid Jamil Hussain Rizvi. अब आगे relevant है. The acting Chief Justice, while pointing out to the witness, stated he should have said judge and not Chief Justice. Observe that the turn of Chief Justice had not yet come. At this stage, accused Judge Bhutto remarked from the seat, "Aega." The acting Chief Justice directed the officer in charge of the police station on escort duty to take note of it and have an entry made at the nearest police station. Abage, the acting Chief Justice further remarked, not that he was offended by the remarks, but if anything did happen, somebody would be accountable. तो इसके बाद जज रहना चाहिए। मैं ये क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई बात। क्या आएगा? मैं समझा देता हूँ जी। हुआ ये कि एक विटनेस का बयान हुआ, उसने कहा जी कि एक स्टैंड गन मुझे पहले भी मिली थी फॉर यूजिंग इट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। तो उन्होंने बाद में उसने कहा सर वो मैं चीफ जस्टिस अगेंस्ट का क्या मतलब? क्या? मारने के लिए? और क्या करना है स्टैंड गन से? I'm lost now. फिर पढ़ ले, मैं दोबारा पढ़ ले जरा उसकी अंग्रेजी को छोड़ दे सब सब्सटेंस उसका देखे ना। पहले PW 31 दिखा दे हमें। 31 को पढ़ने की सर जरूरत नहीं है, उसका ये एक स्टेटमेंट है, ये समझ नहीं आ रहा ना कॉन्टेक्स्ट ये है जी कि एक विटनेस आया, उस 31 को पढ़ना चाहेंगे फिर उसको पढ़ लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो कह रहा है कि मैं चीफ जस्टिस को भी कत्ल कर रहा था, मोहम्मद अली को भी ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है विटनेस ने कहा कि मुझे स्टैंड गन मैंने पहले ली थी फॉर द चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, एज अ गार्ड। नो सर नो, वो फॉर उसको मारने के लिए, और फिल्म एक्ट्रेस मोहम्मद अली। फिर वो कहता है कि जनाब हकीकत ये है कि मैंने कहना था जस्टिस जमील हुसैन रिजवी, तो मैं चीफ जस्टिस कह गया हूँ, इसको करेक्ट करें। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी चीफ जस्टिस की बारी नहीं आई, तो भुट्टो साहब ने कहा वो भी आएगा। भुट्टो साहब ने जब एक रिमार्क साहब देते हैं तो आगे से मैंने भी कुछ कह दिया। ये जो गुलाम हुसैन है ये अप्रूवर है, ये क्या है? नहीं, गुलाम हुसैन वो विटनेस है, अप्रूवर जो सारे ऑपरेशन को कमांड कर रहा था। तो ना सिर्फ उन्होंने इस कंस्पिरेसी में थे, बट एक अर्लियर कंस्पिरेसी में भी थे कि एक्टर मोहम्मद अली और उनका कहना ये था कि हमें ये भी टास्क मिला था। नहीं तो ये तो बहुत क्रेडिबिलिटी टू द विटनेस पे चली जाएगी सर। अब उस पे चले जाएंगे, वो तो दूसरी साइड पे है। अभी पहले मोहम्मद अली का इनसे क्या ताल्लुक हुआ? सर वो एक वाकया बयान कर रहा है ना, अपनी एक्टिविटीज बता रहा है कि हमें ये करने के लिए कहा गया, इसके अलावा भी वजह अब ये तो उससे पूछी जाएगी। नहीं, कुछ उसके मेन स्टेटमेंट वो बता रहे हैं ना, हाईलाइट कर रहे हैं कि उस दौर में ये काम हो रहे थे, और ये जो जरूरी नहीं कि ये जो अकेला इनके साथ हुआ, दूसरों के साथ भी हो रहा था। नहीं देखिए, फिर सॉरी आई एम बिलीवरिंग द पॉइंट, फिर या तो वो ये जाहिर करना चाहता था अप्रूवर विटनेस कि आई वाज द हिट मैन टू डू वेरियस थिंग्स, हूएवर वुड स्पीक अगेंस्ट दिस जेंटलमैन, ठीक है? तो उन्होंने बात की थी तो उसको भी मानना था, मोहम्मद अली ने बात नहीं, लॉजिक क्या उसका जो स्टेटमेंट है, उसने कह दिया कि मुझे स्टैंड गन मिली थी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट लगाने के लिए,
बजाय जज के नाम चीफ जस्टिस का नाम वो तो लेने मैं के समझ लिए गया। लफ्ज चीफ जस्टिस कह दिया, वो तो चीफ ठीक जस्टिस है, गॉट वो- ऑफेंडेड। वो तो मैं समझ गया। भुट्टो साहब ने भी कह दिया नहीं, आएगा। मगर मैं दूसरा पहलू, वो तो बात लेकिन समझ गए। एंड पे वो कह रहे हैं कि अगर ये होगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं आपको अकाउंटेबल ठहराऊं। और दूसरा कहता है मैं ऑफेंडेड हूँ। ऑफेंडेड हूं और अगर हुआ तो मैं आपको तो अकाउंटेबल ठहराऊं। अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या इस सिचुएशन में जब जज का मुल्जम के साथ पर्सनल ग्रज हो जाए और जज उसको चाहे कि सजा मिलनी चाहिए, तो क्या वो जज रहेगा? ये है मेरा पॉइंट। इसमें एक और पहलू भी है। अगर आप पेज 50 पे आ जाएं, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ऐसे। चलो अगर आप पेज 50 पे देखिए, साइन सब कर रहे हैं। तो सारे ही कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अगर ऊपर देखिए, द एक्टिंग चीफ जस्टिस डायरेक्टेड, ये डजंट से द कोर्ट डायरेक्टेड। ये तो इसका मतलब है कि बाकी ये साइन नहीं करना चाह रहे थे ये बात। पता नहीं, अब ये भी मैं तो नहीं, मतलब इफ इट्स अ कलेक्टिव मैं- कोर्ट तो देन यू राइट Obviously अनलेस वो- देयर इज अ डिसेंट और समथिंग। साहब उसको थोड़ा अलाउंस दीजिए कि जो हमारे जैसे लोग हैं अंग्रेजी में उनका कोई मसला हो जाता है। अब वो तो चले, इसको इतना ये इम्पोर्टेंस। PW कौन सा नंबर था? 31। आप कंसर्न कह रहे हैं या आप समझते हैं बलूचिस्तान की 30 अंग्रेजी बेहतर है? 31। अच्छा चले, अब पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। वेरी कंफ्यूज जी। चलें, पॉइंट ये है कि आप बायस दिखा रहे हैं। ये बायस है। गुस्सा कर गया उसको। हैं? गॉट इट, मतलब गॉट इट। जो आपस में उनकी ये हर आप उसको एक्यूज बना रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके खिलाफ पर्चा करवाना, ये है इसका मतलब। यानी कंप्लेनेंट बन गए, कंप्लेनेंट बन गए नए केस के लिए। और जज ये कंप्लेनेंट बन जाए तो क्या फिर उसको बैठना चाहिए था उस ट्रायल में? क्वेश्चन ये है। और क्या बाकियों को भी बैठना चाहिए था जिन्होंने ऑर्डर साइन किया? ये पॉइंट है। ये जो बायस मैलिस हम ढूंढ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो वो तो कहता है कि इसका नाम से रिपोर्ट दर्ज कराओ, और अगर मुझे कुछ हो गया, इसका मतलब मैं दुनिया में ना रहा, तो फिर इसको पकड़ लेना। ये 107 और 151 की कार्रवाई करना चाहता है। वो और चीज होती है, उसमें दोनों तो इकट्ठे उसने कहा कि एप्रीहेंशन कर दी कि ये मुझे मरवा देगा। मैंने को एनमिकल हो गया ना। तो सर आपका इसका मतलब है जिस बंदे को आप चाहते हैं कि सजा मिले, मेरी ख्वाहिश है इसको सजा मिले किसी और केस में, तो अगर आप उसका ट्रायल कर रहे हैं तो उसकी फेट क्या होगी? ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा पहलू ये भी तो है मलिक साहब कि जो अगर मुल्जिम ने कोई बात कर भी दी, वो तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस ऑर्डर में, या तो फिर उसको फिर बयान सर वो तो, बुलाएं। नहीं, पहले तो आपने कहा At ना this accused, Sir, let me put a remark. ये स्टार्ट चीफ साहब ने लिया, स्टार्ट उन्होंने की कि अभी उसकी बारी नहीं आई। ये वो किसको सुना रहे थे? ये बात वो किसको कह रहे थे? वहां कौन था जो बारी ला रहा था? हाँ, सही। ये बारी तो वो उनको कह रहे हैं ना। तो अब जैसे आप मुझे कुछ कहें तो मैं आगे से कह दूं, तो आप कहें हाँ जी आपने तो कंटेम्प्ट कर लिया, बस ठीक है, हमने जो कहा वो छोड़ दें। आप जज की कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं कि अभी चीफ की बारी नहीं आई। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब ये है कि आप उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को मारते हैं। वो आगे से उसने कहा आएगा, अब कह दिया होगा। अब उसके ऊपर पूरा ऑर्डर लिखवाना कि इस कोर्ट वाले को कहो कि थाने जाओ, रपट दर्ज कराओ, ताकि आगे क्वालिफाई कर रहे हैं कि कल को। मलिक साहब हुआ कि वैसे ही ऑर्डर कर दिया? क्या जी? ये रिपोर्ट कर दी थी जज साहब ने? जी वो ऑर्डर में लिखी है। खुद चीफ जस्टिस आप अभी ऑर्डर पास करें कि भी इनको ले जाओ, तो ये तो ले जाएंगे मुझे। ये पूछने इसमें कोई दूसरा तो राय ही नहीं है। तजर्बा करके देख लें। तो मेरी वजह से कभी नहीं होता ऐसी बात। नहीं चले, मैं तो वैसे आपको बात कर रहा हूँ। अभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का है, आप तो खुद चीफ जस्टिस रही हैं। अब वो इस कुर्सी पे बैठ के कहता है कि इस बंदे के खिलाफ ये कार्रवाई करो, who will dare? And in that time, at that time when there is a marshal, has not been brought on the record कि वाकई हो गया था। नहीं वो तो ऑब्वियसली हो गया होगा, वो उसकी जरूरत है। वो जो बेचारा सब इंस्पेक्टर है कि वो कंप्लाई ना करे। तो आप इसमें बात नोट करें ना कि कितना पर्सनल मेरे अंदर वेनम है। इसको ऑफिस आगे बढ़ते अब वो हो या ना हो, लेकिन ऑर्डर से पर्सनल ग्रज सामने नजर आ रही है। साबित है, बस। एस्टेब्लिश है, That's what you are saying. नजर नहीं आ रहा, एस्टेब्लिश हो गया। इसको ऑफिस एंगल से भी दे सकते हैं मलिक साहब, कि अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ होता तो पर्चा ये- करा दे। बिल्कुल पर्चा तो ये इस पे बन सकते थे केस 100%। 100%। चले पहली हो गई हमारा बात। लेकिन अफसोस ये कि पायलट कहते 5 से पहले हो गए, मौका जी, नहीं मिला। आगे क्या हम अच्छा देखें? सर, अब मैं अगर इस स्टेज पे आपको वो ट्रिब्यूनल की बात बता दूं
जिसमें वो कसूरी साहब का स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल ने रेफर किया है, ये so I am not addressing you, please. नहीं आप हमें बताएं ना, आप कोर्ट से बात कीजिए, मैं ठीक है जी, आप हमसे बात करें, कसूरियत तहम्मुल रखिए। I have nothing personal against you, Kasuri Saab. You are respectable for me. I am referring the record. I don't say. मंजूर हमें मुखालिफ सर मगर अच्छा नहीं लगता। नहीं अब क्या करें, बुजुर्ग हैं, हम उनको मना कर रहे हैं, आपको नहीं सुने हम क्या। पहले ये बता दें ट्रिब्यूनल बना कैसे और क्या हुआ। सर मैं पहले एक तरफ से फारग हो जाऊं तो फिर बता देता हूँ। ये ट्रिब्यूनल सर इस तरह बना कि गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया अंडर द ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरीज ऑर्डिनेंस 1969 के तहत। वन मैन ट्रिब्यूनल था, ये नोटिफाइड हुआ इन गैजेट ऑफ पंजाब ऑन 11th of December 1974। इसकी जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी हमें मिली है, उसकी प्रोसीडिंग हमें नहीं मिली। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इसके पीछे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं उसके, अगर वो कहते हैं मैं वो भी पढ़ देता हूं। वो मैंने पढ़ ली है, पूरी रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसका पेज कौन सा है? 14 पे जिसमें ये लिखा है, ये है पेज 14 है इसका। वो कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम ये सर एक ही इतनी सी रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि दे मे बी अदर पर्सन्स हु मे बी इन्वॉल्व्ड, कुछ उनके आपस में कुछ चल रहे थे। नहीं, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है। आप वो रिपोर्ट अगर देख लें जरा, मैंने देखी हुई, क्या पॉइंट क्या बता रहे हैं सर? मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इजाजत दे। इसको पढ़ लेना। जी पढ़े जी प्लीज, मैं पढ़ देता हूँ, चलें आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। कौन से? ये सर पेज 14 पैरा 15। कॉपी भी है, कॉपी है या नहीं हमारे पास? और ये ट्राइब्यूनल ने अपनी फाइंडिंग किस तारीख को ये कंप्लीट की है उसने? है किसमें? मैं सर बताता हूँ। ये है ओरिजिनल, तो हमारे पास है, पता नहीं कॉपीज बनी है या नहीं। कौन सा पेज? आप ऐसा करें, आप पढ़ लें, हमारे पास ओरिजिनल, हम कॉपीज कर लेंगे बाद में। आप पेज 22 फरवरी 1975। पेज पेंसिल से लिखा हुआ है सर जी, वही टाइप पेज है ना जी, ये 14 है, टाइप पेज 14 उसके नीचे पार्ट 2 लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल। नहीं, इसमें तो हमारे पास नहीं है जी। पैराग्राफ कौन सा है? पैराग्राफ 15 सर। ये जो अब ये देखें, ओनली मोटिव वाला इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक। इन्वेस्टिगेशन आपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया, तो इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन को रोका तो नहीं ना ट्रिब्यूनल, उसने तो आगे जाके उनसे है कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल फैक्ट फाइंडिंग मशीन है। हाँ, उसके इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। Why should there be a tribunal? वो मैं उसमें तो सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें जो कि इस केस के लिए बड़ी जरूरी है, वो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये वो गलत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, नॉट बाय दीज ट्राइब्यूनल। बिल्कुल, आई एम विद यू सर, कि कहीं जरूरत नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट में ट्रिब्यूनल बनाने की। वो तो एलिगेशन है, उसकी एविडेंस कलेक्ट करें, बिल्कुल ठीक। मगर एक सर्कमस्टांस आ गया ना उसमें, मैं तो वो रेफर करना चाह रहा हूँ कि अब वो एक चीज आपने खुद ही एक, अगर हम उसका सिनारियो देखें, एट दैट पॉइंट इन टाइम Mr. Bhutto was the prime minister and allegations were being made, so probably to raise the stakes or whatever you want to call it, a judge of the high court was constituted as a tribunal कि कहीं ये देखें पुलिस तो नहीं करेगी सही इन्वेस्टिगेशन, तो शायद ये वजह हो सकती है, और मेरे ख्याल में यही वजह होगी। मलिक साहब, इस तरह के ट्रिब्यूनल बने जब आप इशू को पार करना चाहें तो फिर ऐसे होते हैं, सच दोनों तरफ जाती है ना बात। बट द पॉइंट ऑफ माय लॉर्ड Yahya Afridi is very relevant because in criminal case it is always नहीं, वो तो उसका बन गया ना, मैं तो इसीलिए रेफर कर रहा हूँ ना। जी बताएं फिर। In explaining the mention of motive in the FIR, अब ये आगे बड़ा जरूरी है। The complainant made it clear, and who is the complainant? Made it clear that
it does not necessarily mean that he was subjected to this and at the precedent attack directly at the bidding of the Prime Minister, or that the attack was organized by someone in government or party. He said, on political differences, whatever their nature or extent, such a public condemnation by the Prime Minister, who happened to be, for the time being, the repository and source of all political and governmental power, could prompt a die-hard and over-enthusiastic person or a trigger-happy individual in the government or outside of the party or not to accomplish his extermination from the scene. अब ये वो जो बात है कि वो उनका नाम आया तो क्या वही थे. अब वो ट्रिब्यूनल रेफर कर रहा है उनकी स्टेटमेंट को. दिस इज हिज केस, ही डिड नॉट अपीयर, आई डोंट नो वेदर ही अपीयर्ड और नॉट, बट दिस इज इन द रिपोर्ट. वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट बताई है कि उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो हों, कोई उनकी बातें सुन के शायद किसी और ने भी कर दिया हो. ये मैं पढ़ना चाहता. ठीक. अच्छा, ये हो गया. अब क्या नहीं, अभी ये जो ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट है, ये 75 की बेटा अभी जी सर, ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट है, हाँ इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ये दिए थे. उस पे अमल हुआ या नहीं हुआ? अब पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है. अब उसका मुझे नहीं पता. उन्होंने कहा था ये लाइनों पे करो. अब ये तो जिन्होंने चालान देना था, रिपोर्ट देनी थी, विटनेसेस देने थे, उनका काम था ना. ये ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई? हाँ, वहाँ आई है. तो इनके बयान से कन्फ्रंट नहीं करवाई गई? नहीं, वो उन्होंने इजाजत नहीं दी क्योंकि बयान तो पता नहीं आया. बहरहाल वो तो बड़ी सर लंबी. अभी मैं तो सिर्फ एक गवाह को टच करूंगा. मैं आपका टाइम बचाऊंगा. देयर आर 41 विटनेसेस. मैं नहीं चाहता फिर वो बड़ा लंबा हो जाएगा. 41 के लिए कंप्लेनेंट के उनके स्टेटमेंट आ गया, वो कन्फ्रंट होना चाहिए थे सर. वो आना चाहिए था. वहां कन्फ्रंटेशन को परमिट ही नहीं किया गया. उन्होंने, अब आप देखेंगे वहां पे वो, अब इतनी बातें है ना जी, इतना ज्यादा है मटेरियल कि वो टाइम का इशू आ रहा है आपके पास. अब 41 विटनेसेस है. मैं सिर्फ एक गवाह को फोकस करूंगा, बाकी आई विल नॉट गो टू अदर एविडेंस. सो अब सब हम आ जाएं इस पे. एविडेंस ऑफ मसूद महमूद, PW, ही इज PW2. मसूद महमूद PW2 सर. ये कौन सा वॉल्यूम है? अभी मैं उसको पढ़ नहीं रहा जी. मैं अभी जरा थोड़ा सा वॉल्यूम नोट कर लूं. वॉल्यूम 2 है. वॉल्यूम 2 है इसका. जरा स्टोरी अधूरी रह जाएगी. ये रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, because my colleagues don't have the benefit of this report. ये वाला डायरेक्शन वाला 36. हाँ. In short, the direction that I propose giving to the investigating agency are the following: a more thorough and expert examination of the spot, preservation of property connected with the crime already recovered or recoverable from the spot, expert examination of all the recovered article together with a view to narrow down the class of weapon used in the commission of the crime, natural witnesses to the occurrence, that is resident of the area, invitees at the house of Bashir Shah, the patrol parties to be subjected to more purposive interrogation, particularly for ascertaining the number of shot fired, number of weapons used, and the suspect. And the surviving occupant of the car should have been positively interrogated on certain aspect of the investigation, the material witnesses in the case, and the suspect to be fully protected against physical harm. मैं पूछना चाहूँ, जो 41 विटनेसेस थे, कार के ऑक्यूपेंट्स थे? कार के ऑक्यूपेंट में स्वाय कसूरी साहब के बाकी कोई भी विटनेस बॉक्स में नहीं आया. अच्छा, ये दूसरे जो थे इनवाइटीज एट द हाउस ऑफ बशीर शाह? No. अच्छा, the other thing was the how many shots were fired at the car?
Nobody knows, sir. Number नहीं of कार में उन्होंने कहा ना छन्नी हो अब वो गई. काफी उनसे एम्प्टीज ली थी उन्होंने स्पॉट से. नो आमतौर पे तो केस प्रॉपर्टी बन जाती वो है. बनी ना, ये एम्प्टीज बनी केस प्रॉपर्टी. कार नहीं, कार को तो उसमें कितने, जैसे उन्होंने कहा ना कि there was one entry. अगले दिन इन्होंने स्पुर्दारी पे ले लिया. नहीं उसमें कितने निशान थे? अब ये तो उन्होंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड में कुछ आया कि वो जो जिसने उसको एग्जामिन किया था उसकी फोटोग्राफ ली थी, वो बात आई. बट सर नहीं मतलब मेरा तो वन शॉट है या मौज? नहीं, काफी है. मलिक साहब, शायद आप बता चुके हो, शायद मैंने मिस किया हो, एक कंप्लेंट आई है कंप्लेनेंट की तरफ से. तो फिर जो इन्वेस्टिगेट वो एट द टाइम एंड द अकरेंस टुक प्लेस, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रुख मुड़ गया मिस्टर भुट्टो की तरफ. उस दौरान क्या इनकी कोई स्टेटमेंट आ गई चार्जिंग मिस्टर भुट्टो फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर? कहाँ, कंप्लेंट में या इस केस में? नहीं, इस केस में कंप्लेनेंट की फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई और वो इन्वेस्टिगेशन का रुख जो था वो मिस्टर भुट्टो की तरफ मुड़ गया. ये 77 की बात कर रहे हाँ जी, तो उस दौरान इनकी कोई हाँ आई है. इनका तो कोर्ट में भी स्टेटमेंट आई है. कोर्ट से पहले नहीं, कोर्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेट आई हो. वो कंप्लेंट फाइल की वो बता रहे जब वो कंप्लेंट फाइल के बाद करें कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को नहीं, वो मेरे इल्म में उस नहीं पे एफआईआर में तो नहीं है ना, वो जिक्र तो है भुट्टो को. उनका केस कोर्ट में भी यही है कि ये उन्होंने पूरा नरेट किया है किस तरह मैंने पार्टी ज्वाइन की, किस तरह मैंने मुखालफत की, क्या क्या ग्राउंड थी मेरी मुखालफत की. मैं उनके फैसले के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान असेंबली का सेशन अटेंड करने चला गया. अगर वापस में फिर वापस भी उस पार्टी चले गए तो सारा बड़ा कुछ बातें हैं. वो बिल्कुल क्या है जरा बता दें. बिल्कुल चले गए. इन्होंने टिकट मांगा 77 में, पीपल्स पार्टी का टिकट डिनाइड हुआ. इन्होंने बाहर के मुल्कों में गए, वहां बातें की, वहां भुट्टो साहब की तारीफ की. ये रिकॉर्ड की बातें आप कहते हैं, पढ़ देते. क्रिमिनल कंप्लेंट इनने किस तारीख को फाइल की? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे. वो जो ऑर्डर आपने पढ़ा उसमें लिखा है अगस्त में शायद की है. ऑफ व्हिच ईयर? 77 जब माशाल्लाह लग गया. वो तो फिर आप इनका मेरी सबमिशन ये है कि जो आप सुन रहे हैं उसके लिए इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है. स्टेट ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था नहीं, कंप्लेनेंट से ज्यादा. अब चलें, जैसे इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है, मैं उसको टच ही नहीं करता, मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता. चलिए आगे चले. क्योंकि वो बड़ा लंबा है. वो जो बातें मोटी मोटी आपने पूछी हैं कि he rejoined the party, he applied for the ticket, he has admitted this fact. He admitted this fact in cross examination. That's apply. But he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. ये इनकी explanation है. But ये fact admitted. But मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जो सबमिट करना चाह रहा हूं कि देयर वाज ओनली वन विटनेस अगेंस्ट भुट्टो, वन विटनेस, एंड दैट इज मसूद महमूद. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is speaking the truth, his evidence inspires confidence, it is natural or probable, then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect Bhutto, it does not inspire confidence in the mind of a prudent man, then there is no need of going further. Then to the extent of Bhutto, the case is over because no other witness has charged Bhutto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. मैं सर अब मैं ये देना भी उसकी टेस्टिमनी पेज कौन सा है. अब मैं इसके बड़े ही थोड़े थोड़े पोर्शन पढ़ूंगा ताकि जनाब का टाइम बच जाए क्योंकि ये जो क्रॉस एग्जामिन चीफ है. और फिर पहले दूसरी बात ये है कि फर्स्टली आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ ओनली. I will not touch the cross examination. And PW2, sir. Masood Mahmood. Masood Mahmood, PW2 is examination chief consists of around 17-18 pages. But I will read just 10 pages. Ji. And thereafter I will make page volume 2. Volume 2, page and thereafter 64.
Thereafter, sir. आपने कहा and thereafter I will, after reading this. After reading the examination chief, thereafter I will make the submission and I will show that if this evidence, this statement is accepted that there was no cross-examination on behalf of Bhutto, even then this cannot be trusted. That is कौन सा पेज चले? page 64. Malik sir, he was also executed. नहीं, he was a prover, madam, he was a prover. Prover भी तो उसमें execute हुए. नहीं, अप्रूवर को तो माफी मिलती है तो वो बयान देता है ना जी, उसको तो बस execute हुए हैं prover. नहीं, इस केस में तो कोई अप्रूवर एग्जीक्यूट नहीं हुआ. अप्रूवर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड मैम, बिकॉज यू हैव टू ग्रांट हिम पार्डन. तो बड़ा मेजर यहाँ चूंकि लॉ को अप्लाई नहीं किया तो इसलिए मैंने पूछा. हो सकता है बाद में उनको भी कर देते हैं, काम निकालने के बाद उनको भी कर देते हैं. नहीं, वो बड़ा क्लेवर था, उसने दोनों तरफ खेला है. वेरी क्लेवर मैन ही इज. ये मैं कुछ जाती राय नहीं दे रहा, मैं तो उनको देखा भी नहीं. जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग है. पेज बताए. करूँ शुरू सर? पेज 64. PW2 Masood Mahmood, son of late Abdul Ghani, 54 years of age, formerly Director General FSF on SA. SA is solemn affirmation. At that time, the statements were not recorded on oath. It was on... पता है हमें. मुझे नहीं पता सर. I joined the police service. ये skip करें. क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सारी चीज है, ये skip नहीं होगा. अच्छा. ये हो आपने चलें फिर पढ़ी. मैं आपको पहले बता ना मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या सा क्या हूँ. इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे 3 चीजें मैं कहूंगा. एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से, मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई, और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का. तो फिर मैं कहूंगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क असाइन हो सकता है. प्रूडेंट मैन मानेगा. आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज अ गुड ड्राइवर, यही है ना. अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे. ये इसलिए बड़ा जरूरी है. ये इसको मैं पढ़ूंगा. I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the police training college in East Pakistan. I served in various capacities in the province. The last post that I held in East Pakistan was additional superintendent of police, West. I served as superintendent of police and later as deputy inspector general. In 1965, I was selected as Deputy Secretary Central with headquarters at Ankara. Before that, I have served as the Deputy Secretary both in the provincial and central government, beside holding some other posts. I returned to Pakistan in September 1970 at my own request. On my return, I was asked to wait for a post. After some time, I was posted as Deputy Secretary, Ministry of Defense, and later promoted as Joint Secretary and Additional Secretary in the same ministry. I may mention that despite my best efforts, I failed to see Mr. Wakar Ahmad, the establishment secretary, during those days. I was promoted as additional secretary and then transferred to a punishment post, that is managing director, board of trustee of the group insurance and benevolent funds in the establishment division. I may mention here that I had already been superseded by 4 juniors. I was asked by Mr. Wakar Ahmad to call on the then Prime Minister in the morning of 12th of April 1974. I was told that I had to call on Mr. Wakar Ahmad before this interview. Mr. Wakar Ahmad was very good to me at that meeting, and he informed me that the Prime Minister was going to offer an appointment to me, which I must accept. आगे उनका objection है, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Mr. Wakar Ahmad's name is not mentioned. He drew my attention to the state of affairs of myself and my wife, to the fact that I had small children, and to rule which provides for recruitment at the time of officer of grade 21 and above. The impression that I carried on my mind was that my job was at the mercy of the Prime Minister
and Mr. Waqar Ahmad. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminiscences about our past associations, praised my, ये बड़ी ज़रूरी है, praised my integrity and capacity to hard work, and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officers. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Waqar Ahmad. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job and I was expected to raise the force into deterrent one. The Prime Minister told me that Mr. Waqar Ahmad did not like me, and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent one by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up of an intelligence wing. उसके बाद मैं skip करके सर next page के पैरा आ रहा हूँ. I assume charge. ये मैं skip कर रहा हूँ. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post, which I had accepted, are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted the force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ. अब नीचे आ गया. In the ये किस लिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plainclothes person in public meeting addressed by him to swell the crowd. By plainclothes men, I meant those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to the to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. उसके बाद मैं skip कर रहा हूँ. Next page पे पैरा शुरू हो गया. In June 1974, when Mr. Ahmad Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfiqar Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet and he had enough of him and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmad Raza Kasuri and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. This officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmad Raza Kasuri. ये अब वो कंस्पिरेसी पहले से ही है. इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मियां अब्बास को, पहला जो इनका प्रीडिसेसर है. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask. The Prime Minister further told me that this officer mean Mia Abbas. वो जो ऊपर नाम आया ना. Already been given directions. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है. Wasn't the direction to Muhammad Abbas in itself sufficient? सर मैं इसी पे आगे बात करूंगा. मैं सारा पढ़ लूं थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट
की बातें, मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं चीफ पे बहुत कम जाऊंगा, सिर्फ 2-3 उसके पैरे पढ़ूंगा। मैं इससे ही आपको परसुएट करने की कोशिश करूंगा कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है। दिस इज माय टास्क। To get rid of Mr. Ahmad Raza Kasuri, the Prime Minister went on to instruct me that I should ask Mia Muhammad Abbas to get on with the job and to produce the dead body of Mia Ahmad Raza, Mr. Ahmad Raza Kasuri, or his body bandaged all over. He said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order. I was, ये बड़ा important है. I was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these orders would be against my conscience and would certainly be against the dictates of God. यहाँ मैं pause करता हूँ. Where is the conspiracy? Where is the conspiracy? If we accept that this was said to this witness by the then Prime Minister Zulfiqar Ali Bhutto, and he says, sir, no, this is against not only my conscience, but against the dictates of God. Now, if your lordship look at the definition of conspiracy in section 120A, so does it fall under that, sir? मैं तो चाहता था कि मैं जरा डिटेल पढ़ के इस पे बात करूं, मगर अभी अगर आप इसको देख लें, मैं देख ही रहा था। मैं क्या करूं? I can multitask. इससे ये लग रहा है कि जैसे वो एक उसको बता रहे हैं, इन्फॉर्म करना है कि ये मैं तय कर चुका हूँ। और वो आगे मैं बताऊंगा ना कि अगर उसको बताना ही मकसूद था कि काम कर दो, तो फिर इसको बताने की क्या जरूरत है? कंस्पिरेसी की बेसिक चीज तो सीक्रेसी है कि मैं एक बात दूसरे को नहीं बताना चाहता। ये बताएं, ये जो अपने मियां मोहम्मद अब्बास साहब थे, इनने कन्फेशन किया था? कन्फेशन किया, रिट्रैक्ट किया। उनने जो कन्फेशन किया था, उसमें उनने क्या फरमाया? उसमें यही फरमाया कि जी हाँ जी ये ठीक है, ये साजिश हुई थी, मुझे इसने भी कहा था। किसने कहा? महमूद ने भी कहा था, पहले ने भी कहा था, पहले भी नहीं कहा था, मगर वो रिट्रैक्ट कर गया। उसका कन्फेशन हाई कोर्ट ने भी यूज नहीं किया अगेंस्ट भुट्टो, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फिर उसने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी वो मैं रिट्रैक्ट गलत किया था, मैं सही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। दिस आई एम रेफरिंग फ्रॉम मेजॉरिटी जजमेंट। Majority judgment. His statement was not considered. My question is, I'm stopping here. Just what was my purpose to involve this man? अब आगे पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी. Just to convey this message to that Ghulam Abbas, Mia Abbas. So it could be conveyed to somebody else. He could directly be called by the Prime Minister. कि भी क्या किया? अब आगे देखेंगे तो और बातें आएंगी. पढ़ूं सर फर्दर. आगे जी. The Prime Minister lost his temper and shouted, saying that he would have no nonsense from me or from Mia Muhammad Abbas. Then he raised his voice and said to me, "You don't want Bukar chasing you again, do you?" I returned to my office in that perplexed state of mind. अब ये बड़ा important है कि the man is ordered or asked something by the Prime Minister. He has not said yes sir. हुक्म की तामील होगी जो हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर इवन जुडिशरी में हर जगह करते हैं. उसने ये नहीं कहा. उसने कहा नो सर, आई कांट डू दिस. This is against my conscience, and not only conscience, this is against the dictates of God. And then he says, in this perplexed state of mind, he came to his office, he called me Abbas and narrated that order verbatim. He didn't say that I asked him to do this. ये वकार अहमद कौन थे? वकार अहमद establishment secretary थे, but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. तो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं behind his back. पता नहीं कि सारे ही करते हैं behind back पे ही तो बातें होती हैं, फ्रंट पे तो बहुत नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है टेस्टिमनी.
हाँ ये सही है बात है नहीं, but if he's attributing things, Sir, he वो- could have been summoned. मैं फिर रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं तो टाइम कॉन्शियस हूँ इतना इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट है इतने इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट हैं ना कि फैक्ट्स के बल्कि लॉ के मैं तो चाहता हूँ सुने इसको ये अभी तो मैं इधर रुका हूँ ना कि सिर्फ इससे ही देख लें कि क्या इसकी जरूरत थी बुलाने की अब आगे बड़ी मजेदार बातें आएंगी अभी आप इसको देखिए बड़ा ये अब एक स्टेज पे ये बिल्कुल मोमेंट बनेगा ये कहेगा कि आई हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड अब अनफ्लिंचिंग फेथ जिस बंदे का अल्लाह के पास अल्लाह में है तो क्या वो बदलता रहता है जी 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 ठीक कंटिन्यू करूं जी 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 अच्छा whenever you're tired we'll stop. सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू अभी मेरा इसमें डेढ़ नहीं नहीं आप चलें 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 आपका कितना टाइम हो सर अभी कोई घंटा डेढ़ और लगेगा ज्यादा लग जाएगा तो इसमें क्योंकि बड़ी सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस है आप बताएं बताएं 1.5 घंटा लगेगा कंटिन्यू हाँ टाइम लगेगा सर इसमें घंटा लाने के मुकर जो अच्छा ठीक कल से करना ऐसा कह रहे हैं जी चलें थोड़ा लेट्स एक की विटनेस तो खत्म करें ये तो नहीं खत्म होनी सर 2 घंटे चले कह रहे चले हैं। अगर हाँ इसका चीज खत्म हो जाएगा चले लेट्स सी हाँ चीज खत्म हो जाता है ये अगर घंटा आप कह रहे हैं तो मलिक साहब 2 घंटे कह रहे हैं मैंने कहा था कि 2 घंटे के कहे पूरा इसको एग्जामिन नहीं करना है देखिए आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट टाइम बट लेट्स मेक सम प्रोग्रेस अभी तो टाइम है थोड़ा मुझे कोई इतराज नहीं इसको पढ़ लेते Yes, हैं you're tired चीज with- पढ़ लेते हैं फिर बात करें ठीक, ठीक। चीज पढ़ लेते हैं ताकि वो फिर बाकी बातें बड़ी लंबी हैं उसके लिए टाइम चाहिए ये सर अब आगे आ गया मियां अब्बास आई रिपीटेड टू हिम द ऑर्डर्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर वर्बेटम ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर ही इज नॉट गिविंग हिम डायरेक्शन मैं कह रहा हूं कि मुझे फलां ने ये कहा है ये पहले प्राइम मिनिस्टर मियां अब्बास को कहते हैं कत्ल करो फिर इसको बुला के कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब- कहते हैं मैं बताता हूँ प्राइम वो मिनिस्टर तो दुनिया भर को बता रहे हैं नहीं सर सर नहीं क्या मतलब है सर अब मुझे तो मतलब नहीं पता ये तो केस है आपके सामने मैं तो इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया ऑर्डर था मुझे उन्होंने फरमाया कि ये आई वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर कसूरी अल्लाह उनको जिंदगी दे ये वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा और ये टास्क ऑलरेडी हैज बीन असाइंड टू मियां मोहम्मद अब्बास थ्रू योर प्रीडिसेसर ये वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है अब उन्होंने इसको कहा कि उसको कहो कि इस काम को करे आगे से ये फरमाते हैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है तो मैं नहीं कर सकता तो प्राइम मिनिस्टर अपना टेम्पर लूज करते हैं और इसको कहते हैं कि डू यू वांट टू दैट यू वकास कीप ऑन चेजिंग यू अब वकार के साथ इनका क्या मसला है वो कुछ नहीं पता ये कहते हैं मैं उसी परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में अपने दफ्तर आया हूं उसको मैंने बुलाया मैंने वर्बेटम रिपीट कर दी एंड दैट्स ऑल अपने तौर से कुछ नहीं कहा वो तो आगे आएगा ना जो पूछा हुआ है वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी तो इसको आज पढ़ लेते हैं ना जी बाकी फिर देख लेंगे वो कहता है नहीं, मेरा एक जो देखें ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे नहीं सर नहीं बहुत फायदा है सर प्लीज चलिए फिर पढ़ते हैं। देखिए मैं पता नहीं मैं नहीं मगर सर, मुझे देखिए पता है, सर, पर्सन मेरी एक नहीं रिक्वेस्ट नहीं मैं आपको बता दूं मैंने वाइव मेड दिस कमेंट a person becomes party to an illegal act for joint benefit mutual benefit that could be one thing
or to aspire to an office, that could be another thing. But he's already got the office, or he can decline the office. There's nothing blackmailing. Prime Minister को क्या करेंगे? नौकरी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं गुजारिश करूं सर, मैं गुजारिश करता हूं, अब ये फैसला करना है नहीं, मेरा मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डाल रहे हैं, कह रहे हैं वकार अहमद तुम विल बी वेरी। देखें, मेरी गुजारिश फिर ये होगी कि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है। नहीं, चले करें। मैं कहता हूं सबको समझ आ जाए। चले करें। मेरा टारगेट ये है, मेरा पर्पस ये है। ठीक, हाँ, ये मेरा मकसद है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो नथिंग सर, मैं आई एम एट योर डिस्पोजल। आगे जी सुनिए। I returned to my office in this perplexed state of mind and called Mia Abbas. I repeated to him the orders of then Prime Minister were better. I was surprised to find that Mia Abbas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister would be duly executed because he has already been reminded of this operation by my predecessor more than once. Mia Muhammad Abbas was Director Operation in the FSF. After the Prime Minister has given me these orders, he kept on reminding me, this is very important, kept on reminding me and goading me for their execution. This was done by him personally as well as on the green telephone through Mia Saeed Ahmad and through his assistant Bajwa. कैसी interesting बात। बाजवा भी आ गया, सईद भी आ गया, ग्रीन लाइन भी आ गई, और फिर भी साहब ने दोबारा को रिमाइंड कर रहे हैं, प्लीज कर दो। और वो एक्सेस पे नहीं है ना। आपने एक काम जिससे करवाना, वो तो बाहर बैठा हुआ है और बाहर राब्ता ही नहीं का है, वो उधर ही है, उसको बुला लेते। अब आगे देखिए सर। In August 1974, Mr. Ahmad Raza Kasuri was sniped at in Islamabad. Before the Islamabad incident and after the Prime Minister has spoken to me, I was asked by the Prime Minister to take care of Mr. Ahmad Raza Kasuri, who was likely to be Quetta. अब ये कोयटे का इंसिडेंट है, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कोयटा में शायद अच्छे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बात फिर इसका तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं इम्पोर्टेंस नहीं है। अब मैं आप सही समझे हैं जी, आप सही समझे। अच्छा, किसके बारे में? क्वेटा के बारे में। अब पेज 74 पे जनाब। On the 11th of November 1974, I was at Multan. So was Mr. Zulfiqar Ali Bhutto. Very early in the morning, he rang me up. He said to me, "Your Mia Abbas has made complete balls of the situation. Instead of Mr. Ahmad Raza Kasuri, he has got his father killed." I was taken by surprise. अब ये सरप्राइज में आ गया, जो अदरवाइज कंस्पिरेसी में है, तो उसने कहा कि मियां अब्बास ने ये क्या किया है। आगे कहते हैं, the Prime Minister hung up after telling me that he would summon me later. His ADC then called me at the residence of Mr. Sadiq Hussain Qureshi in Multan, where I was ushered into the presence of Mr. Bhutto, who had Mr. Sadiq Qureshi sitting with him. Most nonchalantly, Mr. Bhutto said to me, as if he has not talked with me before, "I heard Mr. Ahmad Raza Kasuri's father has been killed last night someplace in Lahore." I replied that I had also heard. Soon after that, when I returned to the headquarters, Mia Abbas informed me and reported me that his operation has been successful, but instead of a intended victim, his father Nawab Muhammad Ahmad Khan has been murdered at Lahore. As far as I remember, I left Multan in the same afternoon. I was summoned by Mr. Bhutto on our return to Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. I said to him, "This is very important, sir. Kindly look at a man." He said to me, "At your behest," I said to him, "At your behest, an idea conceived by you was carried out
and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor, and the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore. ये इनके प्रीडिसेसर कौन थे? वाना साहब थे जी कोई, वो पेश हुए? वो फौत हो गए थे। नहीं, इसमें मेरे ख्याल में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से दौरान या पहले फौत हो चुके थे, वो रिकॉर्ड पे आ गया। अब देखिए बंदे का किरदार कैसा है। एक तरफ कहता है जी सुन के तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मगर मैंने कन्वे कर दिया। दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अगला जी वो असली बात आपने नहीं पढ़ी। वो पढ़ देता हूँ जनाब, पढ़ दीजिए। पढ़ देता। My parents hail from Kasur. My father and Mr. Ahmad Raza Kasuri's father were great friends. I had often met the deceased at my late father's house in Model Town, Lahore. We, the two families, had excellent relation. Any grudge or any motive on my part or that of my family against Nawab Muhammad Ahmad Khan or Mr. Ahmad Raza Kasuri or any member of that family never existed. नहीं, अगर इन बुनियाद बात मान लेते हैं दोस्ती थी, तो बुनियादी फर्ज था दोस्त का कि जाके फौरन इतला देता कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, यहाँ से गायब हो जाओ, छुप जाओ, कुछ कर लो, जान बचा लो। ये तो कहने में बहुत दोस्त था उनका। मैं तो अभी तबसरा कर नहीं रहा, मैं तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ, या तो क्या मैं दोस्त नहीं था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और ये बात अभी चले प्राइम मिनिस्टर को ना नहीं कर सकते हैं तो दोस्त को तो बचा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को पहली मीटिंग में क्या देते कि जनाब ये किसी और, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको चुना ही नहीं जा सकता इस टास्क के लिए। प्रेसिडेंट के पास चॉइस क्या था, किस किस को वो रख सकता था, वो अभी मैं इंशाल्लाह ताला बाद में मेरे ख्याल में कल बताऊंगा। Although at the meeting I had with Mr. Bhutto after the murder, he piped down after hearing me there, and were other occasion on which he continued to goad me into getting Mr. Ahmad Raza Kasuri's assassination, categorically said no. After that, attempts were made on my life, threats were held out to me, attempts were also made to kidnap my children from HSN College, Lahore. There were repeat performance of poisoning my food at Chamba House, Lahore, and I discovered that some my own subordinate seems to have been bought over or won over. I had seen them lurking around the place where they should not have been when I आगे ये कहता है जी मैं कस्टडी में लिया गया और ये हुआ वो हुआ, मैंने बयान दिया, वो रेलेवेंट नहीं। अब सब इसमें मैं कल फिर डिटेल सबमिशन कर देता हूँ सारे इशू पे, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि अब इसको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो बयान है, अब इसका एक चीज आप नोट कर लें। आप कह रहे हैं इस बयान पे सजा हुई है, तो और किस बयान पे, और तो एविडेंस है सर, दूसरी एविडेंस तो है ही नहीं। भुट्टो साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो तो सारी corroborative है या सपोर्टिंग है। corroborative नहीं है, सपोर्टिंग एविडेंस है, corroborative नहीं है। और तो अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो एविडेंस इसको कोई मान सकता है? सर मुझे नहीं पता, कोई पता नहीं, कोई मान ही ले, मैं क्या कह सकता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अमाइकस है ना, 4 लोग तो मान चुके नहीं, आप अमाइकस है ना, इसलिए आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। ये इसका जवाब मैं ये देता हूँ, कोई भी सेंसेबल बंदा, कोई भी लॉ नोइंग बंदा, कोई भी रीजनेबल बंदा ये नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। नहीं मियां अब्बास, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं पिछले सुप्रीम कोर्ट की बात। मियां अब्बास का जो 164 का बयान है उसमें उसने भुट्टो के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने तो कहा कि मुझे उसके जरिए डायरेक्शन, वो तो उसको तो माना ही नहीं गया ना जी, उसको तो निकाल देना। फर्ज करें अगर मान ले इसको, फर्ज करें माना ही नहीं गया, फर्ज करने फॉर द टाइम बिंग मान भी ले। नहीं उसने नहीं ये बातें की, उसका कोई उसका बयान, क्योंकि जब कोर्ट में वो तो विटनेस पेश ही नहीं हुआ, वो तो विटनेस पेश ही नहीं हुआ, वो अक्यूज है ना, अक्यूज हो गया ना। 164 तो मैं क्या है, उसने ये नहीं कहा, उसे 164 उसने कहा कि मुझे टवाने ने कहा था, टवाने ने कहा था। क्या उसका स्टेटमेंट, क्या वो मैजिस्ट्रेट जिसके सामने उनने ये बात की थी उसको प्रोड्यूस किया था? हाँ किया। तो फिर तो उसकी कन्फेशन वेदर वो रिकॉर्ड पे तो आया ना, उसकी अपनी हद तक जाएगा ना कि उसके बयान को हाई कोर्ट ने रिलाय नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये क्योंकि ये रिजाइल कर गया उससे, फिर विटनेस बॉक्स में भी नहीं आया ना फिर कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। जब विटनेस बॉक्स में नहीं आया तो 164 की
बैठी नहीं हो है। सकता। नहीं वो देखें किधर है स्टेटमेंट उसका? कौन सा? ये दूसरे मियां का अब्बास। मियां अब्बास और उसका 342 का स्टेटमेंट है ना, उसमें उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। अदरवाइज अगर वो 342 पढ़ा जाएगा ना। अगर वो मलिक साहब अगर वो 164 को आप फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट कर ले उसको, उसमें क्या कहा बात की? यार उसने 164 का अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसने टवाने का जिक्र किया कि मुझे टवाने ने कहा। टवाना तो आया नहीं, टवाना तो फौत हो गया ना। इसका जिक्र किया इस शख्स का, ये महमूद हाँ किया उसने, तो किया 64 में तो किया। फिर वो उसने देखे ये बेसिकली जो चीज आई वो वहां आई और ये सपोर्टिव है। नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एविडेंस आप तब मानेंगे कि इफ ही इज ए विटनेस। मलिक साहब इस तरह कर ले, कल कर ले, सर मैं सर जवाब दे लूं सर। नहीं थक गए सर। नहीं मैं जरा क्लियर कर लूं, वो सपोर्टिंग नहीं है, वो तो मानी नहीं किसी ने। एक शख्स एक अक्यूज कन्फेशन कर ले, बाद में रिजाइल कर ले, वो नहीं माना। आप उसके कन्फेशन को कंसिडर बिल्कुल नहीं सर, करेंगे? अगर तो वो मुल्जम को आप सजा देंगे ना कि उसके कन्फेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट है, उसको दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाँ जी, जजमेंट में सर, लिखा, मैं पैरा पढ़ दूंगा कि जो कन्फेशन मुल्जम का है वो उसके लिए है, ठीक है, वो दूसरे के लिए नहीं है। सही। या तो उसको भी अप्रूवर बना लेते, मियां अब्बास को भी अप्रूवर बना लेते ना, फिर अब आप नहीं उसका बयान देख सकते। दूसरे के लिए वो सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है ना सर, बिल्कुल वो हो उसके सकता खिलाफ। है, बिल्कुल हो सकता है अगर उसको सजा दे उस पे, उसके ऊपर। आप सिर्फ इतना बता दें, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर रिलाई नहीं की, उसको डिसबिलीव किया है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपना रिजाइन कर चुका है तो हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं पढ़ किया। लीजिएगा, वो पैरा निकाल बिल्कुल, लीजिएगा, वो निकाल ठीक है ना, वो जो जिन्होंने कन्फेशन किए हैं। उस पे स्टेट ने अपील नहीं की। नहीं, कोई अपील नहीं की, उसकी क्या अपील करनी, स्टेट का तो काम हो गया। स्टेट का तो काम हो गया ना जी। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो पोजीशन जो है ना, उसका कन्फेशन उसके लिए है, उसका कन्फेशन उसके लिए है और उसको भी सजा उसके कन्फेशन पे नहीं मिली। आई एम एड्रेसिंग जस्टिस या साहब, उसको भी सजा अपने कन्फेशन पे नहीं मिली, दूसरी एविडेंस पे मिली है। बस ये देखना है कि क्या उसके बयान को 164 के बयान को अगर डिसबिलीव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, 164 का बयान उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है सर। अगर तो उसकी एविडेंस को वो बिलीव कर लेते कि ये 164 सही है, ये रिजाइल भी कर रहा है तो नहीं, मगर हम उसके मजिस्ट्रेट के बयान की रिलाई करते हैं, ये नहीं है, उसको भी सजा उस पर नहीं हुई। सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि मैंने जो रिजाइल किया था गलत किया था, मैं फिर उसको सही मान रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम आपको मानते ही नहीं। उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट के। हाँ, वो अभी पढ़ देता हूँ मैं उसको। इसमें लिखिए लर्नेड माइकस जस्टिस मंजूर मलिक commenced his submissions assisted by लिखें या ना ये सर बिल्कुल, ये इन तीन बंदों ने बड़ा असिस्ट किया जी। एक तो नाम बताइए, कोर्ट का नाम ये खुद ही अपने लिखवा देंगे। नाम लिखा ये अंसर नवाज मिर्जा, नहीं हम इनका नाम लिख देंगे, ठीक है। assist by so and so. It is now 4 p.m. 4 p.m. Full stop. During his submissions, it was noted that there was also a complaint case before the High Court, but the learned amicus stated that filed by the complainant, namely Mr. Kasuri, but the learned amicus stated that he has not been able to locate a copy of the said complaint. Full stop. Mr. Kasuri, the complainant is in court, and in case he wants, and if he has a copy of the said complaint, he should file the same. ठीक है, इनके पास होगी ना? पता नहीं, या आप अगर आपका साहब फाइल कर दीजिएगा। मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपका साहब फाइल कर दीजिएगा, आपको भी सुनेंगे। जी, since the very prominent judges of this country who have died, you see, it seems that they are on trial. I think notices should be given because somebody should protect their image and their reputation, because a lot is being said about them. Their
they have died, but their successors should be given notice by this court. But let us correct that they are certainly not on trial. We are dealing as per our duty under the Constitution, attending to a presidential reference. These proceedings are broadcast live. These proceedings are well reported in the media. If anyone wants to come forward, they can do so. No, please, Thajay. Now you said something. Now have the. They may not come on their own, but if you formally invite them before this honorable court, something, and I think they were very prominent judges. You see, when all of us must be in our 20s. At that time, they were the judges of this superior court. Dealing with law. They are being discussed very negatively. So therefore, I personally feel that notices should be given to the the relatives, the families. सूरी साहब अगर आप समझते हैं कि कोई अगेंस्ट द रिकॉर्ड और नेगेटिवली कुछ कहा जा रहा है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, आप उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए. It's not